of Jesus. Hallelujah. 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 We worship you, God. God, touch each and every one of those who are watching here. Everyone will be special, God. Tonight, Lord, visit their houses, oh God. उनके घरों में जाकर उनको आशीष दीजिए, Lord. तेरा सामर्थ उनके जीवन के अंदर में आने पाए आज रात में। हालेलुया। एक पावरफुल मिरेकल होने पाए, एक मैनिफेस्टेड ग्रेस इनके जीवन में आने पाए। मैं कमांड करता हूँ ब्लेसिंग्स को इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक के जीवन में ब्लेसिंग्स एंड अनॉइंटिंग एंड भरपाई आशीष रिलीज होने पाए। Father, in the name of the Lord, hallelujah. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे परमेश्वर अपने हाथों में एक टूटा हुआ चीज या तोड़कर उसे आशीष देता है। And why God breaks? परमेश्वर कोई भी चीज को उठाएगा वो पहले तोड़ेगा, उसके बाद ही वो जोड़ता है। Whenever you give anything in the hand of God, He will break it. If He doesn't break it, you are going to not receive the blessings. You're not going to receive the anointing of God in your life. Everything needs to be broken. क्योंकि हर एक बना हुआ चीज श्रापित हो गया, हर एक बना हुआ चीज श्रापित हो गया। इसलिए खुदावंद बना हुआ चीजों को तोड़कर दोबारा बनाता है। उसको बोलते हैं born again. What is the meaning of born again? You are born, but you are broken. You are born, but you are cursed. You are born, but there is no blessing in your life. You are born with the defects. You are born with curses and negativism, and you are born with sickness, and you are born with a sin. You are born with all kinds of evil things in your life. That's why He needs to kill you, and He's going to bring you again, born again. He needs to break you. He needs to destroy you in order to make you beautiful. So that's why it's very important that if you are not broken, you cannot be a blessing. जब तक आप टूटोगे नहीं तब तक आशीष नहीं बनोगे। आशीष पाने के लिए अलग बात है। 5 रोटी 2 मछली को खाने के लिए 5000 लोग थे, लेकिन टूटने के लिए एक ही केवल जवान था, एक ही बच्चा था जो टूटने के लिए तैयार था। न एक ही व्यक्ति टूटा 5000 परिवार को खिला दिया। जितना ज्यादा टूटोगे उतने परिवारों के लिए तुम एक खाना बन जाओगे, एक आशीष बन जाओगे, एक आजादी का कारण बन जाओगे। तो इसलिए बहुत लोग टूटना नहीं चाहता है, इसलिए वो आशीष पाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो आशीष बनना चाहते हैं, और जो आशीष बनना चाहता है ना, उसको टूटना पड़ता है। You have to be broken in order to be blessed, order to be a blessing. एक आशीष बनने के लिए, in order to be a blessing, we need to be broken. So it's very vital and very important. खुदावंद के हाथों में जो भी चीज जाएगा वो पहले उसे तोड़ेगा। He will break it. He will break it, then He will make it, or He will distribute it. बहुतों को टूटा हुआ वो जोड़ता नहीं है, वो आशीष को देने लगता है। So it is so important that हमें टूटा हुआ रहना। तो इसलिए आज हम एक सिंपल सा कहानी देखेंगे और कैसे खुदावंद आशीष में परिवर्तन किया उसको भी हम देखेंगे। और वो होता है मत्ती लिखे सुसमाचार, the Gospel of Matthew chapter 14 verses 13 onwards. The Gospel of Matthew chapter 14 verses 13 onwards. Now many people will be blessed by this, and your brokenness will be a blessing in the name of Jesus. God बोलता है कि मैं तुझे आशीष का कारण बनाने जा रहा हूँ। I am going to make you a blessing. I am going to build you as a blessing. So let's see how it is, how the story is going to go, and after that I'm going to tell you something very powerful and which will shift things in your life. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. We bless your name. Praise you, Jesus. Glory to God. Thank you, Lord. एक ही वर्ष हम देखेंगे, और एक वर्ष होता है 14 का 19. Then He commanded the multitudes to sit down on the grass, and He took the 5 loaves and 2 fishes, and looking up to heaven, He blessed it and broke it and
gave the loaves to the disciples, and the disciples gave it to the multitude. Verses 18, he says, and he took the 5 loaves and 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed it, and he broke it, and he gave the loaves to the disciples, and the disciples gave to the multitude. Now this is my message tonight. He took the 5 loaves and 2 fishes and he blessed it. Number 1 होता है आपका जो भी, यहां से बहुत सारी चीजों को मैं प्रिंसिपल्स बताऊंगा. ये होता है किंगडम प्रिंसिपल्स. यू कैन राइट इट, किंगडम प्रिंसिपल्स. परमेश्वर के राज्य की सिद्धांत, द किंगडम प्रिंसिपल्स, ये कभी फेल नहीं होती है. नंबर 1 होता है, इन ऑर्डर टू बी अ ब्लेसिंग यू नीड टू बी ब्रोकन. And in order to be a broken vessel, broken thing, you need to be blessed again. The first thing, Jesus took the 5 loaves and 2 fishes and he blessed it looking above. यीशु मसीह ने पहला चीज उसको हाथ में ले लिया और वो ऊपर में देखा. किसको देखा? ऊपर में. Every time, remember, जीसस का मिनिस्ट्री ऊपर देखने का था. जीसस का मिनिस्ट्री ऊपर क्यों देखने का था? क्योंकि वो पिता को देख रहा था. और डिसाइपल्स का मिनिस्ट्री किसको देखना था? जीसस को देखना था, क्योंकि पिता को देख नहीं पाता था. और जो मल्टीट्यूड्स थे, बिलीवर्स थे, जो सुनने के लिए आए थे, वो लोग किसको देख रहे थे? डिसाइपल्स को देख रहे थे. यहां पर एक बढ़िया सा चेन है और ये चेन को आपको समझना होगा. जीसस वाज लुकिंग अप to the Father, and the disciples were looking to Jesus, and the multitude was looking to the disciples. And ये कनेक्टिविटी को आपको बेहतरीन रूप से समझना है, तभी आपका टूटा हुआ चीज आशीष में परिवर्तन होगा. एक टूटा हुआ चीज आशीष में परिवर्तन होगा, कमी घटी चीज आशीष में परिवर्तन होगा. चीजें जो सारे चीज आपके जीवन में नियमित रूप से आशीषित नहीं है, वो सारे चीज आशीषित रूप में परिवर्तन होगा. जीसस का मिनिस्ट्री है, पिता को मैं जो देखता हूं करते हुए मैं वही करता हूं. और चेलों का सेवकाई है, जो हम यीशु को देखते हो करते हुए हम वो करते हैं. और विश्वासियों का चिन्ह ये है कि हम डिसाइपल्स को जैसे देखते हैं हम वैसे करते हैं. और अगर यहां पर से कोई भी चेन टूट गया तो आपके जीवन में आशीष नहीं आ पाएगा. Nobody will be blessed. So it is very important. Now, आइए हम इस ब्यूटीफुल स्टोरी में जाते हैं और कुछ नगेट्स को लेके जाते हैं. Some beautiful nuggets will gather together so that we will be blessed tonight in the name of Jesus. Now, कुछ बहुत सारी चीज यहाँ पर सीखने को है, बट मेरा थीम होता है broken to be a blessing. टूटा हुआ चीज खुदावंद आशीष में परिवर्तन करता है. Now, always you remember वर्सेस 13 से शुरू है इसका कहानी. नाउ इसके चारों तरफ हम समा बांधेंगे. नंबर 1 होता है, when Jesus heard it, he departed from there. Okay. He departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities. And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them, and healed the sick. When it was evening, his disciples came to him, saying, "This is a deserted place, and the hour is already late. Send the multitudes away, that they may go into the villages and buy themselves food." But Jesus said to them, "They do not need to go away. You give them something to eat." And they said to him, "We have here only 5 loaves and 2 fishes." 5 loaves and 2 fishes. In the making of a miracle, एक चमत्कार बनता है, होता नहीं है, बनता है. बोलो, I am a miracle worker. बोलो, you are a miracle worker. Our God is a miracle worker. That's why we are miracle workers. How? What is the recipe to make a miracle? Jesus का यहाँ पर बता रहा है. और इसको हमने देखे, हम आपको रेसिपी दे दिए पहले. देन यू नो इट इज
सो इम्पोर्टेंट, सो वाइटल, यहाँ पर इतना डिटेल्स नहीं दिया गया है, यहाँ पर इतना डिटेल्स नहीं दिया गया है। और 5 loaves, एंड दे सेड टू हिम वी हैव हियर ओनली 5 loaves and 2 fishes। यहाँ पर कोई लड़का का नाम लिखा नहीं है, nobody has written anything, वो लड़के का नाम यहाँ पर लिखा नहीं है। Thank you Holy Spirit Lord, thank you Jesus, we bless your holy name Lord। Now Mark and Luke में भी ऐसे लिखा गया है, तीन जगह में लिखा है। मरकुस 6 का 30 से 44 और लूका 9 10 से 17, लूका 9 10 से 17 हम लोग देखेंगे। लूका 9 10 से 17। लूक जो देता है वो डिटेल देता है क्योंकि he was a doctor। So 9 का हम लोग देखेंगे। फीडिंग द 5000 यहाँ पर, और वहां पर 9 का 10 से लिखा गया। एंड द apostles when they had returned told him all that they had done, then he took them and went aside privately into a deserted place belonging to the city called Bethsaida। now Bethsaida के एक रेगिस्तान में यीशु मसीह ने apostles लोगों को लेके चला गया, 12 चेलों को लेके चला गया, अचानक वहां पर रहा। but when the multitudes knew it, और लोग जब से सुना कि यीशु मसीह वहां पर है, they followed him क्योंकि हेरोद यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। followed him and he received them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who had need of healing। when the day began to wear away, the 12 came and said to him, send the multitude away that they may go into the surrounding towns and countries and lodge and get provision, for we are in a deserted place here। but he said to them, you give them something to eat। and they said, we have no more than 5 loaves and 2 fishes। and how it is possible, ये भी डिटेल नहीं दे रहा है। अभी हम लोग देखेंगे मार्क क्या कहते हैं, द गॉस्पेल ऑफ मार्क क्या बोलते हैं। मार्क चैप्टर 6 उसका 30 से लेकर 30 से लेकर हम देखेंगे। then the apostles gathered to Jesus and told him all things। सब कुछ बताया कि हेरोद कैसे ढूंढ रहा है और यूहन्ना को काट डाला और उसके बाद कैसे इनको मारने के लिए ढूंढ रहा है। तब उसमें लिखा है what they had done and what they had taught। and he said to them, come aside by yourself to a deserted place and rest a while। यीशु मसीह को बोले तुम थके हो, आओ हम विश्राम करते हैं। for there were many coming and going and they did not even have time to eat। so they departed to the deserted place in the boat by themselves। but the multitude saw them departing, and many knew him and ran there on foot from all the cities। they arrived before them and came together to him। and Jesus, when he came out, saw a great multitude and was moved with compassion for them, because they were like sheep not having a shepherd। so he began to teach them many things। when the day was now far spent, his disciples came to him and said, this is a deserted place and already the hour is late। send them away and they may go into the surrounding country and villages and buy themselves bread, for they have nothing to eat। but he answered and said to them, you give them something to eat। now 3 गॉस्पेल में हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, तीनों जगह में यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह का स्टेटमेंट बदला नहीं है, गिव देम समथिंग टू ईट। आज कितने लोग यहाँ पर आप भूखे हो, आज आप निराश हो, आप हताश हो, आपको खाना चाहिए, आपको आत्मिक भोजन नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह कहता है, गिव देम समथिंग टू ईट, गिव देम समथिंग टू ईट। उसके बाद आज यीशु मसीह आपको खिलाने जा रहा है। गेट रेडी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। और वहां पर लिखा गया है, एंड दे सेड टू हिम, शैल वी गो एंड बाय 200 denarii वर्थ ऑफ ब्रेड। बहुत लोग हैं यहाँ पर। बट ही सेड टू देम, हाउ मेनी लोव्स डू यू हैव, गो एंड सी। एंड व्हेन दे फाउंड आउट, दे सेड 5 and 2 fishes। then he commanded them to make them all sit down in groups in ranks and all। and when he had taken the 5 loaves and the 2 fishes, he looked up to heaven, blessed and broke the loaves and gave them to the disciples to set them before, and the 2 fishes he divided among them all। so they all ate and were filled, and they took up 12 baskets full of fragments and of the fish। now those who had eaten the loaves were about 5,000 men। 5,000 men। 5,000 men।
Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Jesus. Give you the glory and honor, Lord. Praise you, Master. Okay. ये सारे तीनों चीजों में सब कुछ स्टोरी थोड़ा ट्विस्ट लगता है. किसने कहा कि उनके पास बस पांच रोटी और 2 मछली दे दिए. किसने कहा कि उनके पास रोटियां 5 थी, 2 मछली थे और बहुत सारे लोग आना जाना करते थे और खाए और चले गए. और एक जगह में लिखा है कि यीशु मसीह ने पूछा, किसके पास कुछ है वो मेरे पास लेके आओ. किसके पास कुछ है वो मेरे पास लेके आओ. यीशु मसीह ने बोला, किसके पास कुछ है वो मेरे पास लेके आओ. आज नीड ऑफ द आवर क्या है पता है? आज जीसस को नीड हुआ है. जीसस इज इन नीड. जीसस इज इन नीड. और जिसके पास कुछ भी है बोलता है वो मेरे पास लेके आओ. द किंगडम ऑफ गॉड इज इन नीड. द किंगडम ऑफ गॉड इज इन नीड. जिसके पास कुछ है वो मेरे पास लेके आओ. यीशु मसीह मांग रहा है. आपका जीवन को यीशु मसीह मांग रहा है. आपका लाइफ को, आपके पैसे को, आपको फाइनेंस को मांग रहा है. किसके पास कुछ भी है मेरे पास लेके आओ. तब चेलों ने जाकर ढूंढने लगा किसके पास कुछ है. और एक बालक था वहां पर. Amen. I bring my heart. एक बालक था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थे. Now Jesus is in need. और आज यीशु मसीह नीड में है. यीशु मसीह के पास बहुत कुछ है, लेकिन वो नीड किस बात का नीड में पता है? वो एक ऐसा पात्र को ढूंढ रहा है जिसमें अहम नहीं है, जो अपना ढिंडोरा नहीं पीट रहा है, जो अपने विषय को लेकर चिंतित नहीं है, जो संसार में घोड़ा गाड़ी बाड़ी प्लेन में चढ़ने का विजन नहीं रखता. वो केवल ऐसा एक व्यक्ति बनना चाहता है जो कि यीशु के हाथों में जाना चाहता है. आई जस्ट वॉन्ट टू गो इन द हैंड ऑफ द मास्टर. ये उसका डिजायर है. एंड जीसस इज वॉचिंग एंड लुकिंग आफ्टर दैट वेरी पर्टिकुलर पर्सन. और यीशु मसीह को मिल नहीं रहा है. बहुत पास्टर्स है, प्रॉफिट्स है, अपोस्टल्स भी है, लेकिन वो अपने कामों में व्यस्त है, मिनिस्ट्री में व्यस्त है, चीजों में व्यस्त है. इसलिए खुदा उन लोगों के पीछे और नहीं जा रहा है, क्योंकि उन्होंने खुदा से सुनना बंद कर दिया. और इसलिए आज दुख की बात यह है कि जीसस इज स्टिल इन नीड. आज एक नीड है परमेश्वर के राज्य में. आज यीशु मसीह का आवश्यकता. हम बोलते ना, हमारी आज आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता, मिनिस्ट्री की आवश्यकता. गॉड का थोड़ी आवश्यकता होगा. गॉड के पास तो सब कुछ होगा. लेकिन आज यहां पर दिख रहा है, तुम लोग चेलों को कहा, तुम्हारे पास कुछ है तो खिलाओ. तो चेलों ने कहा, हमारे पास कहां से आएगा, इतना पैसा भी नहीं है, कहां से लेके आएंगे. लेकिन एक बालक है. अंद्रियस ने कहा, मालिक यहां पर एक बालक है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है. आज एक बालक को यीशु मसीह ढूंढ रहा है. आज यीशु का नीड एक प्रॉफिट, एक पास्टर, एक प्रचारक, एक लीडर फुलफिल नहीं कर पा रहा है. एक प्रीस्ट, एक अपोस्टल फुलफिल नहीं कर पा रहा है. 12 डिसाइपल्स फुलफिल नहीं कर पाए. 12 चेले फुलफिल नहीं कर पाए. लेकिन यीशु मसीह का ये जो डिजायर, ये जो नीड है, ये एक छोटा बालक ने ये जो डिजायर को, ये जो गॉड का नीड को फुलफिल किया. ना गॉड का नीड क्या है? गॉड के पास तो सब कुछ है. गॉड का नीड लोगों का नीड है. आमीन. गॉड का नीड होता है लोगों का नीड को पूरा करना. God's need is people's need. He wants to fulfill the hearts and desires and the prayers of the people. He wants to fulfill the need of the people. He wants to give them bread to eat. He wants to satisfy them. That's why the people's need is God's need, Jesus' need. So when Jesus is needing something, always remember someone is needing in the world something. So that's why Jesus is in need.
not to make himself rich, but he wants that if you bless, you will be blessed. Why Jesus needs from the people? Now always remember, जब कभी जिस किसी को चमत्कार चाहिए, फाइनेंसेस का, रोटी कपड़ा मकान और खाना पीने का, आपको स्वर्ग से खुदा नहीं देगा, क्योंकि स्वर्ग में 500 और 1000 2000 का नोट छपती नहीं है। ये किंगडम का रूल है कि संसार से ही लेके परमेश्वर संसार में रिलीज करेगा, किसी से लेकर किसी को देगा। ये गॉड का डिजायर है, ये किंगडम का डिजाइन है। दिस इज द डिजाइन ऑफ द किंगडम। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, if you want that God to hear, if you want that God to hear you and give you a miracle, be a miracle for somebody. बहुत प्रकार की लोग, लालची लोग हैं क्रिश्चियन ये में, लालची, selfish. They always want everything good for them. They don't want to do something good for somebody. किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 5000 रिलीज करना, कभी रिलीज नहीं करना, मैला भी नहीं देंगे। We are not Christians. We are not disciples of Jesus Christ. The people those who know Jesus, they will not hold to anything more than holding to Jesus Christ and His word. We are so self-oriented, self-centered. मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ बस, और दुनिया जाए भाड़ में, वो गॉड संभाल देगा। बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन पैसा नहीं देंगे। सो सेल्फिश पीपल, आपके जीवन में मिरेकल हो ही नहीं सकता। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल्स ऑल्सो, बिकॉज मिरेकल कहां होता है? हेवन में नहीं होता, अर्थ में होता है। एंड फॉर अ मिरेकल यू हैव टू बिकम अ मिरेकल फर्स्ट। First, when I become a miracle, then I will receive miracles. If I don't become a miracle, I cannot receive miracles. लोग बोल रहे हैं प्रभु इतने समय से मैं आया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे एक मिरेकल चाहिए 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 चाहिए। गॉड बोलता है, किंगडम का पॉलिसी है, पहले तुझे चमत्कार बनना पड़ेगा, क्योंकि तू यीशु मसीह को जानता है, और तब तेरे जीवन में चमत्कार होती रहेगी। This is the protocol of the kingdom of God. Listen always. And to be a blessing for somebody, you have to be a broken vessel. टूटना पड़ता है। मुझे पसंद नहीं है मैं 5000 रुपया 10,000 रुपया किसी को दूं, 500 रुपया आजकल किसी नहीं चलता, 500 1000 रुपया गिनती में नहीं आता आजकल। लेकिन नहीं तो जो भी है थोड़ा तो है, ये तो है। अरे यार, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर इतना आशीष दिया, 500 1000 शर्म नहीं आती? परमेश्वर के राज्य में देने के लिए एनवलप में डालने से आपको शर्म आना चाहिए, हमें शर्म आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जिस लेवल में हमें आशीष दिया, हमें 500 1000 में नहीं, 5 10 25 50 हजार में बात करेंगे हम लोग। Why? Because God has blessed us. एक समय था 500 रुपया, एक समय था 50-100 रुपया में चलाते थे, दूसरों को आशीष देते थे। ये समय आ गया है हजारों में परमेश्वर की आशीष देने के लिए लोगों को। Now, इसलिए it's very important to know that your blessing is not in heaven. Your blessing is on the planet Earth, near your neighborhood. तुम्हारे पड़ोसी में है तुम्हारी आशीष। तू जो ढूंढ रहा है वो स्वर्ग में नहीं है, तू जो ढूंढ रहा है वो अपने परिवार में है, अपने कुटुंब में है, अपने पड़ोसी में है, अपने एरिया में है। बस वो तेरे को देना नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि वो सेल्फिश है। क्यों सेल्फिश हो गया? क्योंकि तू देना नहीं चाहता है। जब हम देना नहीं चाहते, वी डोंट वांट टू बी अ ब्लेसिंग टू समबडी, हाउ कम अदर्स विल ब्लेस यू? दैट्स व्हाई लूक चैप्टर 6 वर्सेस 36 एंड 37 में क्या लिखा है? You're gonna give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Broken हमें होना होगा, टूटना पड़ेगा। अब तोड़ेगा क्या? टूटना क्या है? जो सबसे ज्यादा प्यारा है तुझे, वही खुदा बोलता है कि तू दे पाएगा। जीसस इज इन नीड, और वो क्या है? फाइनेंस। सब कुछ ले ले। एक जन ने कहा, दिल मेरा ले ले प्रभु, क्योंकि तूने इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्रभु, क्योंकि तूने इसे बनाया है। बटवा मेरा मत छू प्रभु, पर्स मेरा मत छू प्रभु, क्योंकि मैंने उसे कमाया है।
दिल देने के लिए रेडी है, ब्लड भी ले ले, पैसा रुपया बिल्कुल बात मत कर, डेंजरस। और वही जगह में खुदा आपको और हमें तोड़ना चाहता है, और वही जगह में अगर हम टूटेंगे नहीं तब हम आशीष नहीं पाएंगे। दो ही गॉड है दुनिया में, सुन लीजिए, एक होता है गॉड जीसस क्राइस्ट और दूसरा होता है मैमोन। और मैमोन कौन है? मैमोन होता है मनी। लक्ष्मी का पूजा करते हैं और मसीह लोग भी कम नहीं है। इसीलिए उस एरिया में खुदावंद तोड़ रहा है लोगों को, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष को खोले। नीति वचन में लिखा गया, जो राजा गेहूं का, अनाज का घर को बंद करके रखेगा, प्रजा उस राजा को श्राप देता है, और जो राजा अनाज के घर को खोल देता है, प्रजा उस राजा को आशीष देगा। और लोगों का आशीष बहुत पावरफुल होता है मेरे प्रियो। यहां पर लिखा गया है, यीशु मसीह का कमी था, यीशु मसीह का नीड था। यीशु मसीह ने बोला कि जिसके पास कुछ भी है मेरे पास लेके आओ। क्यों यीशु? आप तो आंख हाथ खोलने से चमत्कार हो जाएगा, रोटियां बरसने लगेगी ना। ये सब जादू टोना वाला करते हैं। यीशु मसीह जादू टोना करने वाले व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह एक राजा है, राजाओं का राजा है, और वो एक राज्य का राजा है, और वहां पर नियम और कानून है, और नियम कानून के अनुसार उस राज्य में कैसे करते हैं? जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी में हो। स्वर्ग में क्या चलता है? परमेश्वर राज्य भी वैसे चलता है। और उसमें क्या है? परमेश्वर ने इस पृथ्वी को इतना आशीष में भरा है, आपको स्वर्ग से कुछ नहीं चाहिए, केवल यीशु मसीह आ जाएगा बस संपूर्ण। क्योंकि पाप में कह रहे थे यीशु मसीह जीवन का रोटी ऊपर से है, दैट्स ऑल। नहीं तो संसार में इतना पर्याप्त खाना है, इतना पर्याप्त धन है, सब कोई बहुत आशीषमय होकर, धनी होकर रह सकता है। लेकिन बहुत धनी और कुटिल लोगों ने और बहुत श्रापित लोगों ने गरीबों बनाकर, लोगों से लूट कर इतना पैसा कमा दिया और दूसरों को नीचे रोड में ला दिया। और वो थे अपने कुटिलता से और अपने दम, जिसकी लाठी उसकी भैंस कर कर, अपना बाहुबल को दिखाकर संचय करके सोचा कि सब लेके जाएगा, कि मरते वक्त he have to leave everything and go. He have to leave everything and go. He doesn't know he cannot take anything. That's what the deception of riches are, my friend. The people who are running after money, the people who are worshipping money, they want money in the morning and money in the night. And if they have money, they have joy, they have peace, and they want to enjoy. But I want to tell you, my friend, this money will not give you anything. Your money, okay, you will have some certain amount of happiness and certain amount of dance and the things you can do, a lot of places you can go, but money cannot answer everything, my friend. And money is very specially is a god. Jesus is a god and money is a god. Whom we worship today, no one can follow two masters, the Bible says. If you love the one, you will hate the other. If you love the other, you will hate the one. So how it is possible that we love Jesus? That's why I'm telling you, those who love Jesus, your need should be the need of Jesus Christ, and Jesus' need is the need of the people. Jesus is always people oriented. Jesus is always thinking about somebody to bless. So that's why ये important विषय को रखिए, I want to be a blessing for somebody today. आज मैं किसी के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूं। और तू बोता रहे, तू आशीष देता रहे, किसी को कुछ देता रहे, किसी के लिए कुछ नया कपड़ा खरीद के देता रहे, किसी को राशन देता रहे, किसी को फाइनेंस सेंड करता रहे। और ये देता तेरे पास नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मत आने दो, ये पाइल अप होते होते जाएगा और सडनली खुदावंद तुझे आशीष में रिटर्न करेगा। ये होता है गॉड का पॉलिसीज। ये पॉलिसी से हटकर और कोई पॉलिसी है ही नहीं। कितने लोग आके बोला कि मुझे गरीबी से आजादी कर दो, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे बहुत फाइनेंस चाहिए। तो मैंने उसको पूछा, दशमांश दे रहे हो क्या? आर यू गिविंग 10th टाइथ इन द किंगडम ऑफ गॉड?
Are you giving offerings in the kingdom of God? Are you giving alms for the poor people? नहीं दे रहे हो, then God is going to bless you. नहीं, हम प्रार्थना करेंगे 40 दिन 40 लाख के लिए. सुनो, जो जैसा बीज बोएगा वैसा कटेगा. तुम कुछ भी बोकर, आम का बीज को बोकर अनार नहीं पाओगे. तुमको यदि आम का बीज चाहिए तो आम का फल चाहिए तो आम का बीज बोना पड़ेगा. मूर्ख है वो व्यक्ति जो एप्पल का बीज बोकर आम को एक्सपेक्ट करता है. इसलिए जब हम धन को बोएंगे, धन की आशीष को पाएंगे. प्रार्थना करने से तुझे परमेश्वर बुद्धि, समझ, ज्ञान ये सारी चीज देगा, आशीष देगा. लेकिन धन को बोने से धन मिलेगा, शांति को बोने से शांति मिलेगा. जो चीजों को तू बोएगा वही चीजों का फल खाएगा. ये पूरा क्लियरली अपने दिमाग में सटा के रखो. और जो लोग स्वार्थी लोग हैं, उनके जीवन में जितना वो लोग काम करते हैं उतना ही मिलेगा, उससे और बढ़ नहीं पाएंगे. वो लोग लिमिटेड हो गया. लेकिन हम लोग अनलिमिटेड है मेरे प्रियो. और खुदा कहता है कि मुझ पर विश्वास कर और बोना चालू कर दे. इसलिए दूसरा तिमोथी 2:2 और 3 और 4 में क्या लिखा गया? तू एक किसान है, तिमोथियस, पौलुस कहता है, और तू जाके बोने लग जा. You go and start sowing. A farmer is known by sowing seed. हम सब कोई फार्मर है. दूसरा कोरिन्थियोस का 8 और 9 में लिखा गया, 9:8 या 8:9 में लिखा गया है. क्या लिखा गया है? God blesses a cheerful giver. मक्केदोनिया की कलीसिया, और ऐसा कलीसिया लोग गरीबी में देना जानते थे. अमीरी में तो कोई भी दे सकता है, और आजकल अमीरी में लोग देता नहीं है. ये बहुत श्रापित बातें हैं और खुदावंद तोड़ना चाहता है. ये आज हम लोग सीख रहे हैं. ये पर्टिकुलर चीज टूटता नहीं है. क्या करूं, मेरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं. अरे गरीबी में मक्केदोनिया चर्च ने पौलुस को दिया और पौलुस के मिनिस्ट्री को दिया, और परमेश्वर ने आशीष. और वो बोलता है कि यार तूने अपने गरीबी में तूने दिया है, इसलिए परमेश्वर तुझे उसका अमीरी से तुझे पर्याप्त करेगा. थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू जीसस. तो इसलिए देने वाला, किसके पास कुछ है मेरे पास लेके आओ, यीशु कहता है. जीसस इज टेलिंग आई एम इन नीड. इफ एनीबडी कैन हियर माय वॉइस, प्लीज ब्रिंग मी समथिंग. आई नीड इट. जीसस इज कॉलिंग. एंड जीसस का नीड को पूरा करने के लिए हमें टूटना पड़ेगा. वी विल बी ब्रोकन. एंड यही ब्रोकननेस इज वेरी वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. जो एरिया में आप तंग, मैंने पाप में, गंदगी में रह जाते हो, विजय नहीं पाते हो ना, उस एरिया में आपने टूटा नहीं है. उस एरिया में जब आप टूटोगे और बोलोगे प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए, तब खुदावंद की आशीष आएगी. तो लोगों को पसंद नहीं ये सारी चीज बातों सुन. और कुछ बोलो, चमत्कार और मिरेकल ये वो बताओ. नहीं, मिरेकल आपके घर में, आपके परिवार, आपके पड़ोसी में है. लेकिन कब ये मिरेकल आपके जीवन में दिखेगा? जब आप दूसरों को मिरेकल देखो. ये प्रिंसिपल है परमेश्वर के राज्य का. इसीलिए नंबर 1 होता है, बिफोर बीइंग रिसीविंग अ मिरेकल, बी अ मिरेकल फॉर समबडी टुडे. बी अ मिरेकल फॉर एवरीबॉडी या समबडी एवरी डे. हर दिन रेडी करके रखो. फाइनेंस को यदि बोगे, यू विल बी क्रिश्चियन अंबानी वन डे. व्हाई? बिकॉज गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू. नो, अंबानी हर एक चीजों को पकड़ के रखा है और वो अपने पैसे को बढ़ा रहा है. लेकिन आपको परमेश्वर ऐसे एक आशीष में व्यक्ति बनाएगा. आपको पैसा, फाइनेंस आएगा और फाइनेंस रिलीज होगा. मेरा ये प्रार्थना, मेरा ये विजन है कि मैं लंगर चलाऊं, सारे सिटी का जितने भी गरीब वहां पर आए, खाना खाए, और वहां पर 24 आवर्स का आराधनालय बनाऊं, और वहां पर लोग आएंगे और वर्शिप सुनेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, और लोग भुखारी और दुखी और निराश, ओल्ड एज होम भी रहेगा, ऑर्फनेज भी रहेगा, और जो लोग रिजेक्टेड है उन लोग भी आएगा. एक बड़ा सा एकड़ में बनाने की मेरी योजना है. ये मेरा डिजायर है. आमीन. एंड ये मेरा एक ही जगह में, यहाँ पर बंगाल में, यहाँ पर जहां पर मैं रहता हूं वहां पर नहीं, जहां कहीं भी हमारे सेंटर्स होगा, हमारी विश्वास है कि पूरे एवरी स्टेट ऑफ इंडिया जहां कहीं भी हमारा सेंटर होगा, वहीं पर लंगर चलेगा. जब पंजाबी लोग लंगर चला सकते हैं, अन्य जाति लोग लंगर चला सकते हैं, तो मसीह लोग क्यों नहीं चला सकते?
मसीह लोग कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह के पास सबों के लिए जगह है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हर प्रकार के लोग वहां पर आ सकते हैं। ये हमारी दुआ और प्रार्थना है, आपका दर्शन विस्तार होने पाए, आपका दर्शन प्रगतिशील होने पाए, आप दूसरों के क्लेशों को समझने पाओ। और आंसुओं में रात में प्रार्थना करो कि प्रभु तू मुझे ऐसा एक आशीष बना ताकि तेरी योजना, तेरी राज्य मेरे जीवन से दिखने पाए। हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु हर दिन हम 5,000 परिवारों को खिलाएंगे। उसका मतलब क्या करेंगे? हर दिन तो खिला नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे? उनको नौकरी देंगे, उनको 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 काम देंगे। कैसे करना चाहिए? तो मुझे प्रोजेक्ट्स दे प्रभु, मुझे दया कर, क्योंकि एक दिन खाना खिला देने से कोई बड़ी बात नहीं है, फिर उन लोग भूखा हो जाएगा। लेकिन उनको यदि हम लोग काम दे देंगे तो उनको जीवन भर के लिए खिलाएंगे। We'll give them employment. That's what Jesus was doing. उसी तरीके से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका दर्शन चौड़ा होने पाए। जब आप टूटोगे ना बेटा, तब आपका दर्शन चौड़ा होगा। जब आप टूटोगे नहीं, तब आप सकराट दर्शन पकड़ के बैठे रहोगे। जब टूट जाओगे, आपका दर्शन बड़ा होने लगेगा। खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा, आपसे बातें करेगा, आपके साथ परमेश्वर की महिमा मूव करेगी। आई थिंक एंड्रयू मुरे करके एक व्यक्ति था। आई थिंक एंड्रयू मुरे सुबह 4 बजे उठ जाते थे। एंड्रयू मुरे, ओके, 4 बजे उठकर वो एक ऑर्फनेज चलाते हैं इंग्लैंड में। ऑर्फनेज चलाते थे, और वो ऑर्फनेज को चलाने के लिए उनको लगभग 1,000 बच्चों को रखे थे उसमें, 1,000 ऑर्फन्स। और एंड्रयू मुरे के पास कुछ पैसा नहीं होता था, और वो सब बढ़िया कपड़ा 4 बजे उठ के नहाकर आयरन करके बढ़िया कपड़ा पहनते थे। पूरा आयरन, उनका बिना आयरन का कुछ नहीं पहनते हो। और आयरन में बहुत डिसिप्लिन करके घुटनों में आयरन कपड़ा पहनकर घुटनों में घंटों भर परमेश्वर से बातें करते थे और प्रार्थना करते थे, प्रभु 1,000 बच्चे तो तूने दिया, खाना कैसे खिलाएंगे? मुझे अनुग्रह दे पिता, मैं तेरे पास ढूंढ रहा हूं, तुझे मांगता हूं। और एवरी डे का ये काम था उनका। 4 से 7 प्रार्थना करेंगे घुटनों में आकर, और उसके बाद वो जाएंगे, बोलेंगे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, सब आके बैठ जाएंगे, बेल बजेगा, सब ऑर्फन लोग, बच्चा लोग बैठेगा। खाना नहीं बना, कुछ दृष्टांत दे रहा हूं, सुनो। एवरी डे चमत्कार होता था। और वो बीच में जाते थे, 1,000 लोग उसको डैडी बुलाते, पापा आ गए, डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। तो डैडी के पास तो कुछ नहीं है, डैडी विश्वास में चलाते हैं। डैडी बोले, ओके, ऑल ऑफ माई चिल्ड्रन क्लोज योर आइज, सबकी आंखों को बंद कर देते और प्लेट को सीधा करके रखो बोलते थे। और 1,000 बच्चे प्लेट को सीधा करके आंखों को बंद करके जैसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जुगाड़ करेगा। किचन वाले भी खड़े हो गए, क्या करेगा भैया, अभी तो कुछ नहीं है, कहां से आएगा? और जैसे ही आंख खोल के प्रार्थना से, कोई आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु खाने के लिए, नाश्ता के लिए धन्यवाद, आज का लंच के लिए धन्यवाद, आज का डिनर के लिए धन्यवाद, और आज का ब्रेकफास्ट, प्रभु जी आज बढ़िया ब्रेकफास्ट के लिए धन्यवाद तूने दिया है। प्रभु जी आप कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने कभी भी हमें लज्जित नहीं किया है, हम आप पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन। जैसे ही आमेन बोला, एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही होता रहता है। एक 5 स्टार होटल से एक बड़ा सा ट्रक में खाना आया। बोले कि क्या है, किस लिए आया, कौन है आप लोग? नहीं, ये एंड्रयू मुरे का ऑर्फनेज है। बोला हाँ, नहीं हमारा एक तो बड़ा सा शादी होने वाला था, वो कैंसिल हो गया, तो इसलिए हजारों खाना बच गया है। और ये सारे चीजों को हमारे मालिक ने रात में सोया था और उसको बोला कि एंड्रयू मुरे के हॉस्टल में, ऑर्फनेज में पहुंचा के आ। उसे कोई बोला, तो इसलिए आज खाना आया। तो बच्चे लोगों ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर किए। ये मैं एक परिवार का बात नहीं कर रहा हूं, मैं हजारों को खिलाने की बात कर रहा हूं, लंगर चलाने की बात कर रहा हूं। आज पवित्र आत्मा किसी के जीवन में बहुत पावरफुल कार्य करेगा।
आपको विजन्स देगा अद्भुत करने का। अनोखा में जाने के लिए सब कुछ देना पड़ता है मेरे प्रियो। कुछ भी आप अपने लिए रख नहीं पाओगे, सब कुछ रिलीज करना होता है। फाइनेंस, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, नाम इत्यादि। तब खुदा आप पर भरोसा करेगा, और जब भरोसा करेगा रिलीज करेगा। ऐसे ऐसे बातों को आपके जीवन में कभी आपने आंखों के द्वारा देखा नहीं। अरे बेटा क्या करें, अपना खुद का परिवार ही चला नहीं पा रहे, दूसरों के बारे में क्या सोचे। गरीबी में दे रहा, गरीबी में जब समझा नहीं पा रहे हो, सल्टा नहीं पा रहे हो, उसमें में परमेश्वर के राज्य की किंगडम का पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स को फुलफिल करो, और देखो आपके जीवन में आशीष आएगा। देखो चमत्कार तो मुझे चाहिए, मिरेकल्स तो मुझे एवरीडे चाहिए, लेकिन कैसे मैं एक मिरेकल बन सकूं दूसरों के लिए, कैसे मैं एक ब्लेसिंग बन सकूं दूसरों के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिरेकल एंड ब्लेसिंग? एक चमत्कार और एक आशीष से का तात्पर्य, इसका डिफरेंस क्या है, भिन्नता क्या है? मिरेकल होता है यीशु मसीह एक बार पानी पर चल के गया। मिरेकल यीशु मसीह एक बार, शायद 2 बार भी नहीं, एक बार पानी पर चल के गया, दैट्स कॉल्ड मिरेकल। चमत्कार क्या है? यीशु मसीह, नहीं चमत्कार, आशीष क्या है? यीशु मसीह बार बार नाव पर बैठ कर और सोकर गया, दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग। इसका डिफरेंस मैं बताता हूं, अच्छा से सुनिएगा। एक मिरेकल में यीशु मसीह केवल पानी में एक बार चला। क्यों बार बार नहीं चला? क्यों बार बार नहीं चला? एक बार ही चला। उसका मतलब यीशु मसीह बोलता है कि समय पड़ने से कभी कभार तुम पानी पर चल के जा सकते हो, लेकिन बारंबार नाव पर हो गया। ब्लेसिंग्स कहां पर है? बैठकर पानी में गया, सोकर पानी में गया, दैट्स कॉल्ड ब्लेसिंग। मिरेकल होता है एक बार चलने का। फिर पतरस भी ट्राई किया था एक बार, डूब उसी में डूबने लगा, और कभी भी पतरस पानी में नहीं चला लिखा है। कहीं भी लिखा है पतरस पानी में चल के गया? लिखा है पानी में अंदर में घुस के मछली पकड़ रहा था वो। पानी में कभी ट्राई भी नहीं किया उसने। तो इसलिए मिरेकल्स कभी होते हैं कभी नहीं होती है, लेकिन अगर तू ब्लेसेड व्यक्ति है, मिरेकल्स तेरे जीवन में हर दिन होगा। उसका तात्पर्य यह है, सपोज मुझे गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मिनिस्ट्री में कार चाहिए, प्रभु जी मुझे कार चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दूर दूर तक मैं जाता हूँ मिनिस्ट्री करने के लिए, प्रभु जी वो कीबोर्ड लेके जाना है, वो साउंड सिस्टम लेके जाना है, प्रभु जी हर समय इतना पैसा मेरे पास नहीं है, प्रभु दया कर। प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना कर रहा है, सडनली किसके जीवन में काम करेगा? काम करके वो बोलेगा ठीक है मैं आपको एक कार दूंगा। और ना इसका हार्ट में डिजायर है कि उसको एक तो बड़ा सा इनोवा चाहिए, इसका हार्ट में डिजायर है, लेकिन वो बोला कि मैं तुझे एक नैनो दूंगा। मिरेकल का साइज जो दो देता है वो डिसाइड करता है, लेकिन ब्लेसिंग्स क्या है? अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इनोवा खरीद सकता, और पैसा कब कैसे आएगा? जब परिश्रम करूंगा, मैं जब अपने जमीन को खोदूंगा तब मेरे पास पैसा रहेगा। मुझे और किसी का कलर कौन देगा, नैनो कौन सा ब्लू कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आ गया, कार मांगा तो कार आ गया, क्या है? लेकिन अगर मेरे पास पैसा होता, मेरे पास धन होता, परमेश्वर मुझे आशीष दिया, आशीष बोलते हैं, इसलिए बाइबल में धन को क्या बोलते हैं? आशीष दिया। तब मैं क्या करता, कोई भी इनोवा कौन सा कलर, कौन सा टॉप मॉडल में बिल्कुल जाके चुनकर बैठ कर आराम से लेके आता। दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग। और ब्लेसिंग कैसे आता है? परमेश्वर के नियमों को पालन करो। और चमत्कार कभी कभार सडनली होता है, पानी में एक बार चला। बहुत कम मिरेकल्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज वो व्यक्ति ब्लेसिंग्स में नहीं चलता है। और इट इज सो इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड फॉर यू एंड मी कि हमें मिरेकल्स के पीछे नहीं, ब्लेसिंग्स के पीछे भागना चाहिए, और ब्लेसेड मैन होना चाहिए हमें। देखो जहाज में आजकल हजारों लोग सो के जाता है, सो के, समंदर, बड़ा बड़ा समंदर का पानी के ऊपर सो के जाता है। दैट इज कॉल्ड मिरेकल, ब्लेसिंग। खुदावंद आज आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को खोलना चाहता है।
आई डोंट वांट टू बी अ मिरेकलस मैन। आज पानी में चला, कल डूब गया, तीसरा दिन चला, परसों दिन नाव में आ गया, ऐसे नहीं। आई वांट टू बी अ ब्लेस्ड मैन। धन्य है वो व्यक्ति, बिकॉज वो आशीषित व्यक्ति है, वो आशीष में चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए आशीष किसके पास रहेगा? वफादार लोगों के पास रहेगा, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, लिखा है, चमत्कार किया नहीं लिखा है। उत्पत्ति 12:1-2 में लिखा गया, मैं तुझे आशीष दूंगा, चमत्कार नहीं करूंगा, आशीष दूंगा और तू एक आशीष का सोता बन जाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हो? हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बातें करने पाए। सो इसीलिए नंबर 1 होता है ब्लेसिंग्स स्वर्ग में नहीं है, पृथ्वी पर है। किसी के पास आपका ब्लेसिंग है, लेकिन आपके पास नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक स्वार्थी व्यक्ति हो, आप एक लालची व्यक्ति हो। आप और हम एक ऐसे व्यक्ति हैं कि हम धन चलाने का नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा, प्रार्थना कर लेते, बहुत मुश्किल है। हम कभी भी कुछ दिया नहीं, कभी देना नहीं चाहते हैं, कुछ भी चीज, खाली अपने परिवार, अपना ये ना। जीवन यीशु मसीह सब कुछ दे दिया। अपना लास्ट कपड़ा भी था, उसको भी ले लिया, उसको ये करने के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मिरेकल पाने से पहले आपको यू हैव टू बिकम अ ब्लेसिंग फॉर समबडी, मिरेकल फॉर समबडी एवरी डे। जितना ज्यादा डेली करोगे, उतना ज्यादा मिरेकल का लेवल आपके जीवन में आप पाओगे। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। और उसको मिरेकल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका जीवन को यीशु के हाथ में देना पड़ेगा। किसके पास है? कुछ लेके आओ। अंद्रेस ने बोला कि एक बच्चा है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, मेरे पास लेके आओ। उसको वो बेटा दिया, जैसे दिया ना, उसका हृदय बोला, अरे पता नहीं 5,000 के चक्कर में मेरा टिफिन गया, टूटा। जब कभी दूसरा पॉइंट होता है, जब कभी परमेश्वर आपसे कुछ लेना चाहता है ना, जान लो कि वो आपसे छीन कर लेना नहीं चाहता है। आप पूरे दिल से देना चाहते हो तो लेगा वो, और लेना चाहते हैं इसलिए कि आपको भरपूरी रूप से आपको देने पाए। 12 टोकरी बच गया। यीशु मसीह हर वक्त एक्स्ट्रा का परमेश्वर है। कभी आप मांगोगे ना, मैंने मांगा, परमेश्वर मुझे 5,000 रुपया चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। परमेश्वर मुझे 5,500 रुपये देता है या 6,000 रुपये देते। क्यों पता है? 1,000 रुपये बोलते कि एंजॉय कर, एक्स्ट्रा तुझे देगा परमेश्वर। 5,000 आएगा तो किसको देना? 5,000 चला गया, मेरे को क्या मिला? जिससे ऑलवेज परमेश्वर एक्स्ट्रा कुछ देता है। मुझे कोई कुछ मांगता ना कि यार ये सारी चीज प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये सारी चीज, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा देने के लिए, ताकि वो भी ब्लेस्ड हो जाए। कोई भी चीज होता है, तो आइसक्रीम खाएगा तो धन्यवाद देखो, एटलीस्ट आइसक्रीम खाने का तो एक्स्ट्रा पैसा बचा है। इसको बोलते हैं टिप, एक्स्ट्रा टिप। इट इज सो ब्लेसिंग यू नो टू गिव टू अदर्स। दूसरों को देने में बहुत आशीष होती है। पाने में जितना आशीष है, उसका 100 गुना ज्यादा देने में आती है। ये सब चीज मैंने देखा, मैंने सीखा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरे प्रियो, तोड़ेगा परमेश्वर, तोड़ा उसको। जैसे ही वो रोटी, 5 रोटी 2 मछली को लिए, लिखा क्या? उसने नंबर 1 आशीष दिया। आशीष, चमत्कार नहीं कर दिया, आशीष दिया। किसको देकर? पिता को देकर। पिता, मैं तेरे भरोसे में इस रोटियों को आशीष देता हूं, इस मछलियों को आशीष देता हूं। ये टेंशन में ना रहे, लेकिन ये भरोसा करे कि मैं जब आशीष दे दिया, ये टूटने से बिखरेंगे नहीं, टूटने से पर्याप्त हो जाएंगे। और जैसे आशीष ब्लेस्ड, उसके बाद लिखा वो ब्रोक, उसको तोड़ा। माय फ्रेंड, आपको और मुझे तोड़ा जा रहा है, लेकिन हमको तोड़ना पसंद नहीं है। बहुत तोड़ा प्रभु, और नहीं ले पा रहा, लेकिन प्रभु और भी तोड़ रहा है, क्योंकि विजन बड़ा है, दर्शन बड़ा है, इसलिए तोड़ेगा ही तोड़ेगा। नहीं तो छोटा सा एक विजन दर्शन में बैठ जाओ और तोड़ेगा नहीं ज्यादा। लेकिन हर किसी को परमेश्वर तोड़ता है। जैसे उसके हाथ में आया, वो आशीष देकर तोड़ा, प्रार्थना करके तोड़ा, ब्लेसिंग्स करके तोड़ा। वही चीज तो हमारे जीवन में तोड़ रहा है ना। ये रोटी को तोड़ा, लिखा है 5 मछली, 2 मछली को तोड़ा और 5 रोटी को तोड़ा। ये रोटी क्या है? ये यीशु मसीह का देह है। जब यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा, क्या बोला? ये मेरा देह है।
इसे तेरे लिए तोड़ा गया है। और देह कौन है? चर्च है। यीशु मसीह अपने शरीर को तोड़ा क्रूस के ऊपर, लेकिन चर्च उसका देह है और यीशु मसीह उसका सिर है। जब वो तोड़ रहा है ना, वो चर्च को तोड़ रहा है। वो दुनिया को तोड़ के क्या करेगा? दुनिया तो ऐसे ही नाश हो रहा है। जब चर्च को तोड़ा जाएगा और जब दूसरों को दिया जाएगा, वो टूटा हुआ पीस इतना पावरफुल रहेगा, खा के भी बच जाएगा 12 टोकरी। आपके जीवन, टूटा हुआ जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके जीवन को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आपका टूटा हुआ जीवन को यीशु मसीह इस्तेमाल करना चाहता है। आज जो कोई भी टूटा हुआ है, जिस किसी क्षेत्र में आप टूटे हुए हो, वो टूटा हुआ पीस को यीशु के हाथ में दे दो। या आप ठीक से टूटे हुए नहीं हो, खुदावन ने आपको तोड़ा नहीं, खुदा के हाथ में दे दो, वो तोड़ेगा। जितना ज्यादा टूटोगे उतना ज्यादा आशीष दुनिया भर में आपके द्वारा आएगी। ऐसा ऐसा संवाद कोई सुना नहीं है, मैसेज ऐसा ऐसा एनॉइंटिंग रिलीज नहीं हुआ है, ऐसा ऐसा मिरेकल्स नहीं हुआ है, वो आपके द्वारा पवित्र आत्मा रिलीज करेगा मेरे प्रियो। लेकिन एक ही रीजन है, हमें टूटना होगा। जब तक हम टूटेंगे नहीं, तब तक हम आशीष नहीं पाएंगे। आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, लेकिन आप यीशु से बाहर हैं। आप अपनी समस्या में टूटे हैं, घर में परेशानी है, परिवार में असमर्थ है, कमी घटी, इसलिए टूटे हैं। वो आपके रीजन के लिए टूटे हैं। लेकिन कभी यीशु मसीह के रीजन के लिए टूट के देखो, वो टूटापन को यीशु मसीह जोड़ेगा, यीशु मसीह चंगा करेगा आपको। लेकिन उससे बढ़कर होता है, आप बोलिए प्रभु तू मुझे ले और तोड़, ताकि मैं इस्तेमाल हो सकूं तेरे राज्य में, दूसरों की आशीष के कारण, दूसरों के लिए मैं आशीष का कारण बन सकूं। प्रभु जी तू मुझे तोड़, मैं तुझे अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु ने आशीष दिया, तोड़ा, और तोड़ने के बाद उसने चेलों को दिया, बोले कि सबको धारी में बिठाकर खिला दो। और जैसे तोड़ा वो बढ़ने लगा। आपका जीवन जितना भी टूटेगा उतना बढ़ेगा। आपका जीवन जितना भी टूटेगा, जान लो आप टूट रहे हो क्यों पता है? आपका जीवन यीशु के हाथ में है। आपका जीवन जो टूट रहा है, अब सुन लो, यीशु मसीह आपको तोड़ रहा है। जो भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको टूट रहा है, और आपका जीवन यीशु के हाथ में है। और खत्म होने के लिए, नाश होने के लिए नहीं, प्रगतिशील होने के लिए और उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन हाउस बनने के लिए आपका छोटा छोटा टुकड़ा और हजारों और लाखों को खिलाने जा रहा है मेरे प्रियो। चैन में रहो और खुशियां मनाओ कि तुम्हारे जीवन में क्लेश आई है करके लिखा गया है। मत्ती 5 में लिखा गया है, धन्य है व्यक्ति जिसको क्लेश होता है, दुख आता है, यीशु मसीह के लिए उठा रहा है, क्योंकि उसका रिवॉर्ड बड़ा होने जा रहा है। खुशियां मनाओ, तुम्हें परमेश्वर ने तोड़ रहा है ताकि तुम्हें हजारों का परिवार चलाएगा तुम्हारे जीवन के द्वारा। इसलिए अपने जीवन, अपने शरीर, अपने सोच, अपने विचार कभी भी अपने लिए कुछ मत रखो, यीशु मसीह के लिए जियो। आज इस मास्टर्स ऑफ मास्टर की ये मैं बताना चाहता हूं, मास्टर को जरूरत है और मास्टर को पास्टर की जरूरत नहीं है। मास्टर को एक बच्चा की जरूरत है। क्यों बच्चा के पास था, क्यों चेलों के पास नहीं था? एक छोटा बच्चा में छल कपट नहीं होता है। इस छोटे बच्चे के जैसे बन जा, स्वर्गीय राज्य इनका है करके लिखा गया है। जो छल कपट नहीं करता, बच्चा कभी सोचा नहीं होगा अरे 5 रोटी 2 मछली। कभी कभी सोचता हूं यार 5 रोटी 2 मछली बच्चा क्यों दे दिया? उसका भी तो कुछ तो सोचा होगा। लेकिन बच्चा ना ज्यादा सोच नहीं पाता, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। छोटा बच्चा है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाता। उसको यदि फुसला दोगे ना, वो दे देगा। और उसको बोला यार मालिक मांग रहा है, उसका इतना विश्वास बढ़ गया है, और छोटा बच्चा का विश्वास बढ़ गया यीशु मसीह का वचन को सुनकर। और बोले ठीक है ले लीजिए, कोई बात नहीं। वो सोचता नहीं है अरे मैं दे दूंगा, मैं क्या खाऊंगा, ये इतना तो सोचता है। बड़े लोगों सोचता है अरे बाप रे कैसे दे देंगे, ये तो मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है 2 रोटी रखता हूं, 3 रोटी में देता हूं, 1 मछली। 3 रोटी 1 मछली दिया तो 2 रोटी 1 मछली मैं खा लेता हूं, प्रॉब्लम क्या है? खिलाओ आपको जो करना है। क्या 3 रोटी 1 मछली को परमेश्वर 5 दिन नहीं खिला पाता? बिल्कुल खिला पाता। लेकिन ये बच्चा आधा अधूरा रह जाता है। इसलिए बच्चा कभी भी आधा नहीं रखता, संपूर्ण देता है।
और जब आप संपूर्ण दोगे ना, तब 5,000 परिवार को खिलाने लायक बनोगे मेरे बच्चे, मेरे प्रियो। Father's eyes are on the children, on the small child-like faith. I want to give everything to my Jesus. I want to live for my Jesus. Wow, he's a mighty man. He can do anything. He can turn the stones into bread also. I believe in miracles. I trust in my Jesus. So that's why whatever God says, I will do it. Jesus बोला, किसके पास कुछ है? दो। कोई नहीं उठ रहा है। ये बोला, मेरे पास कुछ है। सब कोई छिपा रहा है। क्या किसी के पास कुछ खाना नहीं रहेगा? रहेगा जरूर, लेकिन उन्होंने नहीं दे रहा है। लेकिन ये बच्चा बोला, मैं देना चाहता हूं। आई एम विलिंग टू गिव इट। और उसको तोड़ा। उस दिन वो रोटी को जब तोड़ा तो वो बच्चे को वो तोड़ रहा था। वो बच्चे का बलिदान को तोड़ रहा था, बच्चे का लव को तोड़ रहा था, दिखा रहा था, बच्चे का डिजायर्स को तोड़ रहा था। ये मेरा खाना चला गया। बच्चे का फ्यूचर को तोड़ रहा था, बच्चे का मनी को तोड़ रहा था, बच्चे का भविष्य को तोड़ रहा था। लेकिन यीशु भी बहुत महारथी है। वो तोड़कर फिर वापस उस बच्चे के पास लेके आया। अब वही बच्चा 5 रोटी और 2 मछली नहीं, 10 रोटी और 5 मछली हो गया होगा उसके पास। खा खा के लिखा गया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि अतृप्त होके गया। भरपेट खाना खाया। आपके जीवन भी ऐसा होने जा रहा है मेरे प्रियो। The people who are watching here, in the name of Jesus, God is going to multiply the seeds which you are sowing and your pain and your heart, and God is breaking you only to be a blessing in the name of Jesus. You will be a blessing for the nations. You are broken so that you will be a blessing for the kingdom of God, and you will be used mightily for God's glory and grace. You will be released in the international ministries. ग्लोबल मिनिस्ट्री करोगे। छोटे मोटे चीजों को, खाया हुआ टुकड़ा का खाना आप पकड़ के मत बैठो। कोई आपका बिस्किट खा लिया, उसको छीन के आधा खा रहा हूं मैं। ये दर्शन में देख रहा था 2 दिन से। प्रभु बोल रहा है, तेरे लिए घर है बिस्किट्स का, रोटी का, तो ये क्या है? इसको छीन के क्या फेंक दे और 2-4 ठो उसे खाने दे। तेरे पास कंपनी है रोटी एंड बिस्किट्स का, तुझे मैं वो देना चाहता हूं। छोटे मोटे चीजों में फंस के मत रहो मेरे प्रियो। गॉड का आलीशान आशीष है, उसके पीछे भागो। ये गंदगी से बाहर निकलो। ये सारी चीजों को गॉड तोड़ रहा है। आज पवित्र आत्मा तोड़ रहा है। हालांकि हम टूटना नहीं चाहते। जब भी बोलते हैं लॉर्ड आई सरेंडर, आई गिव माय लाइफ, गॉड तोड़ेगा। नहीं रहने दे, इतना भैया रहने दे, मैं इतना प्रार्थना में ठीक हूं। इसलिए गॉड तोड़ नहीं पाता, क्योंकि हम संपूर्ण दे नहीं पाते। जब वो तोड़ने जाते हैं हम भाग जाते हैं। नहीं, आज से डिजायर करो, लॉर्ड प्लीज आई गिव माय लाइफ टू यू, सो यू कैन यूज मी, ब्रेक मी लॉर्ड, मेल्ट मी, मोल्ड मी एंड मेक मी इनटू अ पावरफुल ब्यूटीफुल वेसल। जितने लोग यहां पर देख रहे हैं मेरे प्रिय, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक टूटेंगे नहीं तब तक मल्टीप्लाई नहीं होंगे। Till the time we are broken, we will not be multiplied. Till the time we will not be broken, we will not expand, enlarge and increase. When we will be broken down, when people will laugh at us, when people will mock at us, see nothing, he is having nothing, he is a useless, adulterous man, useless personality, he doesn't know, even though Jesus came but he didn't change. People will laugh and you will break. And when you'll be breaking down, give your bread, life in the hands of Jesus. Because if you are broken outside the hand of Jesus, you will not be builded again. You might commit suicide also. But if you are broken in the hands of God, my friend, I want to tell you, He will build you again. He will break you to be a blessing and multiply you again. He will restore you again. He will heal you again. He will strengthen you again. He will anoint you again. And you will stand again for the glory of God. So that's why don't give your life in the hands of any person. Give your life in the hands of Jesus Christ. And He will break. He will not leave you like that. If you are broken, He will break you more, so that you will be built once again into the image and likeness of Jesus Christ, His Son, my friend.
So give your life tonight in the name of the Lord. Give your finances for the kingdom's glory. Give everything, whatever is holding you back from following after Jesus. And God will break you. And God will take things from you first. Then He will bless you in return. When He will bless you in return, it will be a mega blessing. Let's pray tonight. Father, in the name of Jesus, make me a miracle for somebody. Make me a blessing for someone. That means I need to be broken. Lord, I'm broken. I have broken pieces in my heart. Nobody loves me in the house. Nobody loves me in the family. Nobody loves me in my friends. I am broken tonight. I give my life to you, Lord. Use it for your glory. I don't have anything, Lord. I might die today. I might fall today. I might be destroyed today. The enemy is after me. Lord, save me. Help me. I need you, Jesus. I give my life in your hands. Cry out to God, and Jesus is going to bless you. Jesus is going to take your broken pieces and make you into a tremendous blessing in 2021, my friend. The Spirit of the Lord is here, my friend. He wants to bless you. He wants to mend your broken life. Hallelujah. He wants to heal your life. He wants to shift His blessings over you tonight. Are you ready to hear Him? Are you ready? Hallelujah. To receive the anointing. Hallelujah. Give your broken pieces, Jesus says. मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए. कितने लोग बोल रहे हैं? प्रभु बोलते वही चीज तो मुझे दे दे. तेरा टूटा हुआ जीवन. हालेलुया. ये गाना मेरे पिता का गाना है. My dad's songs. आंसू के साथ मेरे टूटे दिल को मैं लाता. हर वक्त दिल को टूटा हुआ रखो. कभी भी इतना भरपूरी मत हो जाओ कि जॉयफुल खुशी हो कि खुदा को भूल ना जाओ. हर वक्त टूटा हुआ दिल, क्योंकि खुदा टूटा हुआ दिल में रहता है. आंसू के साथ मेरे टूटे दिल को मैं लाता. माफ कर दे पापों को मेरे. माफ कर दे पापों को मेरे. मेरा प्यारा यीशु प्यारा. आंसू के साथ मेरे टूटे दिल को मैं लाता. आंसू के साथ मेरे टूटे दिल को मैं लाता. जीवन में तुझसे दूर चले गए. जीवन में कितनी बार तुझसे दूर चले गए. माफ करके प्यारा मसीहा तूने माफ करके प्यारा मसीहा अपने गले लगा लिया. आंसू के साथ मेरे टूटे दिल को मैं लाता. आंसू के साथ मेरे टूटे दिल को मैं लाता. चल नहीं पाऊं इस दुनिया में. इतनी कठिन रास्ता. चल नहीं पाऊं इस दुनिया
आपके जीवन को अद्भुत रूप से बनाने जा रहा है। बस अपने जीवन को यीशु के हाथों में दे दो, हजारों हजारों का खाना बन जाओगे, हजारों घरों को खिलाओगे मेरे प्रियो। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वो पर्याप्त है आपको एक पावरफुल मैन बनाने के लिए। मेरा थोड़ा क्या हो सकता है, वही थोड़ा दे दे, यीशु मसीह बढ़ा देगा। मेरे हाथ में वो छोटा सा टिफिन छोटा थोड़ा होकर रह जाएगा, लेकिन जब मेरे हाथ से छोड़कर यीशु के हाथ में जाएगा, वो टिफिन एक बड़ा मिनिस्ट्री बन जाएगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा किससे बातें कर रहा है? आज पवित्र आत्मा आपके जीवन को आशीष दे, सहायता और मदद करे ये सीक्रेट को समझने के लिए, ताकि मैं एक आशीष बनूं, एक चमत्कार बनूं किसी के लिए। आज दुखों को दूर करूं, यीशु मसीह की आवश्यकता को पूरा करूं, अपना सारा चीजों को उसको दूं। वो जो कहता है वैसे चलो, देखना कुछ अद्भुत आपके जीवन में होगा। कल आप ऐसे नहीं रहोगे, आप एक किंगडम का कंपनी बन जाओगे, जहां पर टूटे, दुखियारी, कष्ट, दुख, क्लेश में रहने वालों को आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, खाना खिलाओगे। आपका नाम यीशु मसीह सुनाम अक्षरों में लिखा जाएगा। स्वर्गीय स्थानों में बहुत बड़ा बड़ा रिवॉर्ड्स मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा मेरे प्रियो? आओ हम इस संसार की चीजों को ग्रिप छोड़कर यीशु मसीह को पकड़े और उसकी आवश्यकता में पूरा हो। टूटना पड़ेगा, रेडी। प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, तू इस्तेमाल कर, तू जो चाहता है कर, दया कर, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु सारे लोग जो सब देख रहे हैं, उन सबों को आशीष दे। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया लॉर्ड। आज रात में परमेश्वर इनका टूटा हुआ जीवन को आप इस्तेमाल करने जा रहे हो। अपने अपने जीवनों को इन्होंने आपके हाथों में समर्पित किया है। 30-40 लोग जो भी देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की स्वर्गीय हाथ इनके पर आ जाए। मास्टर ऑफ मास्टर्स मिनिस्ट्री को आशीष दे लॉर्ड, हालेलुया। प्रगति सिस्टर को आशीष दे, इसके मिनिस्ट्री, इसके फाइनेंस, इसके फ्यूचर, इसके फैमिली को आशीष दे। एक अद्भुत सोता बन जाइए लॉर्ड। लेट देम बी ट्रेमेंडस ब्लेसिंग लॉर्ड to many people and nations and languages, Lord, hallelujah. Bless this ministry abundantly, I pray. And those people those are watching, Lord, hallelujah, help them to be a broken in your hands, so that they can be a blessing to the generations to come, Lord. Broken to be a blessing, broken to be a blessing. God first blessed, then broke, and then blessed, hallelujah. You know, a broken piece always in the hands of God always is blessed before and blessed after. Blessed before breaking, blessed after breaking. Give your life to Jesus. यहां पर भी प्रॉफिट, यहां पर भी प्रॉफिट। आशीष ही आशीष। टूट जाए, चीजों को छोड़ दे, जो सारी चीज आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है। आज पवित्र आत्मा हर एक जीवन को टच करे, फिल करे, ओवरफ्लो करे, और आपकी योजना इनके जीवन में पूरा होने पाए। यीशु मसीह के पावरफुल नाम से मांगते हैं। Thank you for hearing our prayers and blessing each and every one of those who are watching, Lord. Make them a blessing in their brokenness, in their weakness, in their sorrow, in their trouble.